box, the one who is getting impacted by your business, they are also your customers. So if your product is such because of which your environment is getting affected, so even the pollution control board, the outside environment, and your neighbors, they all are getting impacted. So they are also your customers. Then primary and secondary customer means what? Many times it happens that there is somebody who pays for it and there is somebody who uses it. Anyone can give this example. Say for example, as a father, you buy the toy. Okay, so you go to the shop and you purchase it. So you become a secondary customer because you are buying it, you are paying it, but your kid, your child is going to use it. So he is the end user. So that's how there is also a primary and secondary customer relationship. So you understand who is the primary customer? There is the one who is end user is your customer, as well as the one who pays, the one who buys it. They are also your customer. So after having understood the concept of customer or the word customer, let's make how customer and business is related to each other. As said here, make a customer, not a sell. Okay. We all know that if a customer is retained, if customer is happy, he will come again and again to your shop or to your business, or he will again and again purchase your product or services. But even if once or twice if he gets cheated or he gets a bad impression about your product or services, he will never return. Especially in today's scenario when competition is very high, customers have got more options to buy. Retaining a customer is a big challenge, big challenge. Customer has got a many choice. It's like saying in Hindi or Urdu what we say, तू नहीं और सही और नहीं और सही. So आज this is the buyer's market. This is not a seller's market. हर कस्टमर के लिए जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, and you can go to anyone. Any small mistakes committed by your business or your people will be punished by the customer by not buying your product or services. Recent research says 90% of the machine manufacturers said in order to defend against the low cost competitors, a greater percentage of their revenues must come from the services. Therefore, the way they service their clients is critical to their long-term success. प्रोडक्ट एक बार बेच लेना कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं है. बार बार बेचना और उसी कस्टमर का बार बार आना और खरीदना is the indication that you have retained your customer. You are giving something different to the customer because of which he is coming again and again to you. So how you service to your customer is something which is very important. If you can prevent 5% of your customer from your leaving, you can increase your bottom line profit by 25 to 95%. This is a Harvard Business study. What happens is we are not able to retain the customer. As a result, we lose the business, and further we will see how difficult it is or how costly it is to leave the customer once he becomes your customer. पड़ता है और कितना मार्केटिंग में खर्च करना पड़ता है और कितना कन्विंस करने में खर्च करना पड़ता है, तब कहीं जाके कस्टमर आपको मिलता है. और फिर जब वो कस्टमर बन जाता है, तो अगर हमारी छोटी सी गलतियों से या छोटी सी मिस्टेक से या बड़ी मिस्टेक से वो कस्टमर छूट जाता है, तो आपका कितना बड़ा नुकसान जो है वो होता है. Another research says the average, this is of course American business,
but the concept is more or less similar for even India also. The average American business loses 15% of its customers base each year. 68% of customers who stops buying from one business and go to another will do so due to poor or indifferent service. 82% goes somewhere else because of specific customer service issues. So आप देखिए, कस्टमर इतना सेंसिटिव होता है कि उसे कुछ भी चीज ऐसी लग जाए जिससे उसको एक ऐसी फीलिंग आ जाए कि ये बिजनेस ने, इस शॉप वाले ने या इस बिजनेस वाले ने या इस कंपनी ने, तो वो दोबारा जो है वो आपके पास नहीं आता है. I think you all must have experienced this. I had read once one story in Times. ये पुरानी है बात, करीबन 3 साल पुरानी बात होगी, जिसमें एक लेडी थी जो कहीं बाहर से आई थी और उसने सांता क्रूज एयरपोर्ट से जो है वो टैक्सी पकड़ा और वो साउथ बॉम्बे में उसे कहीं जाना था. वहाँ वो पहुंची, उसके बाद उसका किराया दिया और जब वो अपने जिसके यहाँ वो जाना था वहाँ गई और उससे बातों बातों में बताया कि टैक्सी का इतना किराया हो गया. तो उस बंदे ने कहा, अरे इतना किराया हो गया, ये तो आपने टैक्सी वाले ने आपको लूट लिया. तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे जो है वो बाकायदा उसने फेयर कार्ड दिखाया जो उस पर लिखा हुआ था इतना और मैंने वो देख कर ही पेमेंट किया. तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको इतना लिया है क्या क्या किराया. और फिर उसने जो है उस बंदी को बताया कि देखो टैक्सी वाले जो है वो 2 कार्ड यूज करते हैं, एक जो है वो फेक होता है, वो बिल्कुल वैसा ही उसकी बनावट वगैरह होती है, और एक जो है वो ओरिजिनल होता है. तो उसने वो बताया उसको कि उसमें हाँ उतना ही फेयर लिखा हुआ था. देन कैन यू इमेजिन दैट लेडी, वो लेडी जो है वो दोबारा वहां से, आप उसको बेवकूफ कहेंगे, लेकिन उसके बाद में जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने ये स्टोरी बताई थी. वो दोबारा वहां से निकली और टैक्सी पकड़ के दोबारा जो है वो वहां से वो सांता क्रूज आई. वहां आकर उसने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई कि ये फला फला टैक्सी वाले ने जो है वो उसको इस तरीके से जो है वो चीट किया गया है. पुलिस ने उसको जो है वो लेकर वो घूमने निकली, वो टैक्सी वाले को पकड़ के, और उसका पूरा दिन जो है वो वेस्ट हो गया. वो टैक्सी वाले ने भी उस लेडी को कहा और इंटरव्यू लेने वाले ने भी पूछा था जब उससे कि यार आपने वो 200 रुपया 150 रुपया ज्यादा के लिए आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, आपका उससे कहीं ज्यादा खर्च हो गया. उसने कहा बात इसकी नहीं है, बात जो है वो चीटिंग की है. अगर उसने खुशी से मुझसे मांग लिया होता 100 रुपये एक्स्ट्रा तो मैं दे देती, लेकिन जो है उसने मुझे चीट किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा. तो इसी तरीके से किसी भी कस्टमर को जब आप चीट करते हो, किसी भी तरीके से चीट करते हो, झूठ बोल के कोई माल दे दिया, कोई इसके बारे में बताया नहीं कि ये ऐसा है और वो दे दिया, और उसको बाद में रियलाइज हुआ दैट कस्टमर इज नेवर गोइंग टू कम अगेन टू यू. Another research says that 80% of your company's future revenue will come from just 20% of your existing customers. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो आप कस्टमर्स आपके होते हैं और वो कंटिन्यू आपके कस्टमर होते हैं जिनको आप रिटेन रखते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं 80% of business comes from them. According to marketing metrics, it is easier, about 50% easier to sell to existing customers than brand new prospects. एक नए बंदे को लाना, कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, कंपेयर टू एक ऑलरेडी कस्टमर आपका है, उससे बहुत आसान है. यू ऑल मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग, ये कोई नया नहीं, सारे मेरे ख्याल से जितने लोग ने ज्वाइन किया सारे बिजनेसमैन है, या नहीं भी है तब भी जो है वो इस छोटी सी लॉजिक को तो समझते होंगे. Now, why customer quits? एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है कि 1% तो खत्म हो जाते हैं, 3% जो है वो चले जाते हैं कहीं, 5% अदर फ्रेंड्स वगैरह के किसी और के पास किसी सजेशन से या एडवाइस से चले जाते हैं, 9% जो है वो कॉम्पिटिटिव रीजंस की वजह से जाते हैं, 14% जो है वो प्रोडक्ट डिससेटिस्फैक्शन से जाते हैं, लेकिन 68% क्वाइट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस ऑफ एन एम्प्लॉय. एम्प्लॉय मीन्स यहाँ पर जो है वो एक आपके जो आपका एम्प्लॉय है उसका इंडिफरेंस जो है वो कस्टमर से जो इंडिफरेंस होता है उससे जो है वो लोग छोड़ जाते हैं. तो आप देखिए कि जब कहाँ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है, जब लोग कंप्लेन करते हैं तो उन्हें किस टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है, वो उससे जो है वो सारी आपका जो है वो इमेज बिल्ड होता है.
So now we will see something which is called Kano model. ये एक जापानीज रिसर्चर्स था, मार्केटिंग पर्सन. इस बंदे ने जो है वो एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया था कस्टमर के लिए. व्हाट ही से, जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि कस्टमर्स डोंट रियली नो व्हाट दे वांट, दे हैव टू बी टोल्ड. कस्टमर को पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए, उसे समझाना पड़ता है. ये बहुत हद तक जो है वो सही भी है और कुछ हद तक जो है वो गलत भी है. ये सही इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि जब मोबाइल फोन आया था, किसे मालूम था कि मोबाइल फोन में क्या क्या फीचर्स आएंगी. मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने लोगों को नई नई फीचर्स बताई और वो धीरे धीरे जो है वो उसके दीवाने होते चले गए. कस्टमर्स ने जाके ये नहीं डिमांड किया कि भाई आप मोबाइल में मुझे कैमरा भी दे दो, भाई मोबाइल में आप मुझे जो है वो न्यूज भी दे दो. लोगों ने उसके बारे में सोचा, मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि अगर हम हमारे कस्टमर्स को ये भी दें तो कैसा रहेगा. ओके, और फिर जो है वो लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. आज देखिए आप, कैमरे की मार्केट बिल्कुल खत्म हो गई है. इवन वॉचेस की मार्केट जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि लोग जो है वो टाइम वहीं से देख लेते हैं. मोबाइल ने कितनी चीजों की जो है वो मार्केट खत्म कर दी, क्योंकि वो सारी चीजें जो है जो लोग अदरवाइज दूसरी जगह से मिलती थी इंफॉर्मेशन, और ये दूसरे रिसोर्स से यूज होती थी, वो सारी चीजें अब उनको उसमें ही मिलने लग गई है. आज अभी ये कोरोना वायरस से लॉकडाउन चल रहा है, न्यूज़पेपर नहीं आ रहे, आपका काम चल रहा है न्यूज का, सारी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल पे आ रही है और दूसरे मेथड जो है वो डेवलप हो गए. So the truth is what the customers do know what they want, but they may not be proficient at describing their needs. तो एज ए मैन्युफैक्चरर हमको उनकी नीड्स को समझना होता है. कस्टमर may not tell you in a language which they want, they may say in whatever language they want. Okay, but as a manufacturer, as a businessman, हमको हमारे कस्टमर को रीड करते रहना और उसकी नीड को समझते रहना जो है वो बहुत जरूरी है. और जब आप उसको वो चीज देते हैं तब जो है वो उसको जो है वो एक इफेक्ट जो है वो आता है, विच वी विल सी इन हिज मॉडल इन अ नेक्स्ट स्लाइड. सो बाय अंडरस्टैंडिंग द 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर नीड्स एंड हाउ टू रिवील देम, you will better know your customers true needs and how to address them. तो कस्टमर की नीड क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो आपके होटल में, आपका एक होटल का बिजनेस है. अब होटल के बिजनेस में एक कस्टमर आता है, व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन? अभी ऑफकोर्स ये चूंकि वेबिनार है, जनरली वी कंडक्ट face-to-face discussion where people answers the question and that becomes more interactive. Here it is just not possible, but now I will answer on your behalf के ठीक है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो किसी की भी बंदे की जो वो होटल में जाएगा खाने के लिए, अब ये ना ये थोड़े ये नीड भी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट. ओके, उस जो बंदा जा रहा है वो किस होटल में जा रहा है, उसका अपना क्या स्टेटस है, वो 5 स्टार में जा रहा है, 4 स्टार में जा रहा है, या नॉर्मल रेस्टोरेंट में जा रहा है, या बिल्कुल सिंपल सी कुरला के किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है. तो उस हिसाब से जो वो चेंजेस हो सकती है, बट फिर भी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टार और क्लास इज हाइजीन, कि यार साफ सुथरा तो हो. ये बोलने की जरूरत नहीं होगी कि यार मैं जो मुझे आप जो खाना दोगे वो कम से कम साफ सुथरी कंडीशन में जो है वो पकाया गया हो, जो पानी आप मुझे पीने के लिए दोगे वो जो है वो जो है वो गंदा नहीं हो, कोई पोल्यूटेड ना हो, राइट? सो दिस इज समथिंग which is one type of need. Okay, what is another expectation? Then this is something which Kano in his model, if you can see in this next slide, Kano ने उसको कहा कि ये this is nothing but an expected quality. यानी ये चीज अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे. दिस इज समथिंग कॉल्ड मस्ट, कि आप अगर किसी होटल में खाने के लिए जाते हैं, नाश्ता लंच वगैरह डिनर जो भी करने जाते हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज मिनिमम एक्सपेक्टेड. अब अगर आपके पानी में जो है वो गंदगी दिखाई दे दी, या आपको फूड उसने लाकर दे दिया, वो उसके अंदर कोई चीज निकल गई ऐसी जो
तो आपको जो है वो पूरा एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा कि यार ये क्या है, ये होटल है क्या है, मजाक है। फिर आपने समझो आप बैठे और आपने बैठ के जो है वो ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद कहा अच्छा ठीक है मुझे ये लंच लेना, लेकिन साथ में जो है एक काम करना, पापड़ भी ले आना, थोड़ा सा अचार ले लेना, ये चीज के अंदर जो है वो थोड़ा कचुम्बर दे देना, वगैरह वगैरह। सो दिस इज नथिंग बट इज, दिस इज कॉल्ड समथिंग विच इज स्टेटेड नीड या नॉर्मल क्वालिटी। यहाँ पर जो वर्ड उन्होंने लिखा, या दूसरे शब्दों में हम लफ्ज में कहते हैं स्टेटेड नीड, कि ये चीज आप स्टेट करके बता रहे हैं कि भैया मुझे जो आप लंच दोगे, डिनर दोगे, इसमें ये चीज भी जो है वो देना, राइट। एंड देयर इज अ थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड स्टार्ट एक्साइटिंग क्वालिटी और वाव इफेक्ट। कि समझो आप उसने, उस बंदे ने आपकी एक एक्सपेक्टेड थी कि हाइजीन, मिनिमम हाइजीन ठीक थी, आपने जो आज से मांगा आपने वो भी दे दिया, ओके, और मांगने खाना खत्म होने के बाद उसने एक स्वीट डिश आपके पास लाके रख दी। आपने कहा यार ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। उसने कहा नहीं ये सर ये होटल की तरफ से फ्री है। व्हाट विल यू फील? ऑफ कोर्स अभी ये एक अलग बात है कि किसी को कोई डायबिटिक्स हो और ये हो, स्वीट नहीं खाता हो, बारिंग सच पीपल, जनरल पर्सन विल से वाओ वेरी गुड यार। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड वाव इफेक्ट। तो कानो ने ये सजेस्ट किया कि किसी भी कस्टमर को आपको ये 3 नीड उसकी जो है वो समझनी है, और जिस बंदे ने उसका वाव इफेक्ट ढूंढ लिया उसने अपने लिए जो है वो नए कस्टमर पैदा कर दिए, और जिस बंदे ने जो मिनिमम एक्सपेक्टेड क्वालिटी थी उसको भी पूरी नहीं की, उसके कस्टमर तो 100% जो है वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। वो मतलब अगर वो जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी लोग तो वो सोच के चलते हैं कि यार ये तो मिनिमम होना ही चाहिए, किसी भी हम होटल में जा रहे हैं तो पानी तो साफ होना चाहिए, खाना तो साफ होना ही चाहिए। सो जब एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए बिजनेसमैन आप अपने कस्टमर की जब ये 3 हिडन जो है वो नीड्स को आप समझते हैं, तो जो है वो आप आपका बिजनेस जो है वो रिटेन कर पाते हैं, आप उसको जो है वो चला पाते हैं। और जो कोई बिजनेसमैन जो है वो नॉर्मल क्वालिटी नीड्स और एक्सपेक्टेड क्वालिटी नीड, ओके, या हम ऐसे कहें कि एक जो है वो स्टेटेड नीड्स और जो है वो मिनिमम एक्सपेक्टेड नीड्स, इनसे आगे बढ़कर कुछ वाव इफेक्ट देता है या कुछ एक्साइटिंग इफेक्ट देता है उसके प्रोडक्ट या सर्विस में, ऐसे लोगों का बिजनेस जो है वो बढ़ता है। ऐसे लोग जो है वो नए कस्टमर्स जो है वो क्रिएट करते हैं। So this is something which is very important. If you all understand this, it will definitely help you in creating more business, in acquiring more customers, and of course, the minimum 2 is there for retaining the business. So what any customer wants, ये अभी हमने just देखा। अब how will you understand your customer needs? जैसे मैंने पहले बताया कि कस्टमर्स जो है वो कुछ तो चीजें वो एक्सपेक्ट करते ही हैं, वो बोलते नहीं है लेकिन वो आपको समझना है एज ए मिनिमम कि ये तो उसको देना ही देना है, ओके। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑल्सो होती है कस्टमर्स में, जो मैंने बीच वाली जो थी क्वालिटी नीड या स्टेटेड नीड, जिसमें कस्टमर खुद कहता है कि मुझे ये चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहां भी जो है वो गलती कर बैठते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड वॉइस ऑफ कस्टमर, ओके, कि जहां कस्टमर बोल रहा है आपको कि मुझे ये चाहिए और हम वो नहीं देते। सो हाउ दिस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हैपेंस and how this creates a issue. Let's see one example this time. Most of the people must have seen this example earlier. They may retain their statement with them, but just see it. This is something where the customer requirement is generated. Generally क्या होता है, इवन छोटे बिजनेस, बहुत ही छोटा बिजनेस होता है जहाँ 1 मैन शो होता है, वहाँ एवरीबडी इज डन बाय 1 पर्सन। वही एक बंदा जाता है, कस्टमर को भी बात करता है, फिर आके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में भी खुद ही रहता है और डिलीवर करने में भी खुद जाता है। ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिम कि जब आप जाते हैं कस्टमर से सुनने के लिए, तो ये एक एग्जाम्पल दी गई है कि सेल्स टीम जनरली जाती है कस्टमर से समझने के लिए कि भैया आपको क्या चाहिए।
तो कस्टमर उसको जो है वो कहता है कि भैया मुझे ये चाहिए जो यहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि ऐसा कोई एक झूला चाहिए जो इस तरह झाड़ की ब्रांच पे जो है वो लगा हुआ हो। जब सेल टीम जो है वो सुन के आती है और रिक्वायरमेंट समझ के आती है और आने के बाद अपनी डिजाइन टीम को जो है वो समझाती है, और डिजाइन टीम जो है वो समझती है कि ऐसा कुछ एक रिक्वायरमेंट उनको चाहिए। अब डिजाइन टीम अपना डिजाइन करके जो है वो प्रोडक्शन टीम को जो है वो देती है, और प्रोडक्शन टीम जो है वो कुछ उसको बनाता है कि भैया देखिए ये जो है वो समथिंग कुछ एक कस्टमर को चाहिए, तो वो बना के जो है वो उसको दे देते हैं। ओके, अब प्रोडक्शन टीम ने प्रोड्यूस कर दिया तो काम आता है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग टीम का, सर्विस टीम का, जिनका काम होता है कि प्रोडक्ट ले जाके वहां पर इंस्टॉल करके चालू करके आना है। तो वो बंदों को तो कोई ऑप्शन नहीं होता, वो जाते हैं उसको, क्योंकि उनका काम ही होता है कि किसी तरीके से जाके उसको चालू करके आए। तो वो जाके जो है वो उसको चालू करके आ जाते हैं कि भाई ये झूला है आपका, ये देखिए ये बन गया, ये आपने ऑर्डर किया था, और एक्चुअल में कस्टमर को जो है वो ये चाहिए था। So you can imagine that how communication gap happens right from understanding the customer requirement to what product you deliver to the customer. चूंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर कम्युनिकेशंस के अंदर, तो वो कस्टमर कम्युनिकेशन में नीड्स और रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं, और बाय द टाइम जब आप कस्टमर को भेजते हैं तो जो है वो कुछ डिफरेंट चीज भेज देते हैं, और जिससे जो है बड़ा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। So one of the important requirement which we understand is the communication gap. Communication specifically with the customer जो है वो बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इतने सारे प्रोसेस से वो पास हुआ और बाद में जब रॉन्ग प्रोडक्ट चला गया तो यू कैन इमेजिन द लॉस टू द कस्टमर, लॉस टू द बिजनेस। आपने बनाने का तो सब वेस्ट हुआ ही हुआ, कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन अलग हो गया, और जो वो नेक्स्ट टाइम वो आपको बिजनेस देगा या नहीं देगा वो उसके बारे में हमें पता नहीं। So what customer wants? Customer wants to be heard. जब वो कस्टमर बोलता है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम कस्टमर को जो है वो प्रॉपरली समझे, बाय आस्किंग मोर क्वेश्चंस, राइट, सो दैट क्लैरिटी रहे कि भैया दिस इज व्हाट वी वांट, और जब आपका बन जाए उसके पहले जो उसको एक दोबारा कंफर्मेशन ले लें कि भैया देखो दिस इज व्हाट यू हैव टोल्ड, दिस इज व्हाट वी हैव रादर डिसाइडेड टू मेक, इज इट ओके, or do you have any change or any suggestion? As far as possible tell them a truth, tell them in advance everything, कि कोई चीज अगर पॉसिबल नहीं है, कोई चीज डिफिकल्ट है, कोई चीज जो है वो बनाने के लिए मुश्किल है, यू विल सी दैट उस वक्त सच बोल देना आपको आगे के 1000 प्रॉब्लम से जो है वो आपको बचा लेगा। कुछ इंटरेक्शन होके, कुछ डिस्कशन होके वो 19-20 हो जाएगा रेट में वगैरह वगैरह, लेकिन जो है वो आपको फ्यूचर का प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन वहां पर अगर हमने कोई चीटिंग कर दी, उसको बताए बगैर कुछ बना दिया और सोचा कि जो है उसको कहाँ पता चलेगा, बिलीव मी कस्टमर को सब पता चल जाता। आज नहीं पता चलेगा, 5 साल बाद पता चलेगा, 1 साल बाद पता चलेगा, जब भी पता चलेगा तब आपका बिजनेस जो है वो जरूर चला जाएगा। So understand your customer, hear him out patiently, ask question to get it clarification or verification. Complaint is something which comes after the product has been delivered or product or service has been made to a particular customer. Of course इसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन हो जाता है और उसके बाद जो है वो आपको कंप्लेंट आती है। ऐसा कहा जाता है कि कंप्लेंट इज नथिंग बट अ गिफ्ट। और कस्टमर, कोई भी कस्टमर आपको कंप्लेंट कब करता है, जब उसको वाकई उससे जो है वो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिसको वो सोचता है। पहली बात तो आपके एक स्टैटिस्टिक्स बताती है, आगे चल के कहीं आएगा, कि वेरी फ्यू पीपल का फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट्स, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, वो कहते छोड़ दो यार, हो गया, आगे से खरीदेंगे ही नहीं उसकी मांग, उससे चीज खरीदेंगे ही नहीं, एक बार चीटिंग हो गई। उसमें से भी अगर कोई डेयरिंग करके आपको जब ये बताता है कि देखो आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में ये कंप्लेंट आई है, उस वक्त अगर आप उसको निग्लेक्ट करते हैं और आप उसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो आप समझ लो कि आप जो है वो परमानेंट उस कस्टमर को छोड़ देंगे। और ऐसा एक कस्टमर बोल रहा है, पता नहीं और कितने को डिफेक्टिव चीज गई होगी,
जो है और उसने जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा, वो नेक्स्ट टाइम जो है वो नहीं आएगा। सिंपल सिंपल चीज है। अभी आई मीन अभी लॉकडाउन चल रहा है, वी वर एक्सपीरियंसिंग वन प्रॉब्लम समहाउ। माय सन ऑर्डर जो है वो चिकन, वो बंदे ने जो है उसको उठा के दे दिया, बोला रेट बहुत कम है ले जाओ। उसने घर ले आया, ले आने के बाद पता चला कि ये तो फ्रीजर में रखा हुआ था, ऑलमोस्ट इट इज लॉस्ट इट्स फ्रेशनेस, स्मेल आ रही है और ये आ रही है। अब लॉकडाउन है, उसमें आप रिटर्न करने कहाँ जाएंगे दोबारा? ठीक है आपने तो फेंक दिया, लेकिन दोबारा जो है वो उसकी शॉप में जो है वो नहीं गए। उस बंदे ने तो सोचा होगा कि चलो मैंने तो निकाल लिया मेरा एक बार माल, बट बाय डूइंग दैट ही लॉस्ट द कस्टमर फॉर एवर। सो ऑफकोर्स उसने कंप्लेंट भी नहीं की। सो अगर कस्टमर कंप्लेन करता है तो ही इज गिविंग यू अ गिफ्ट, ही इज गिविंग यू अ गिफ्ट बाय टेलिंग यू दैट के बाबा आप जो कर रहे हैं ये गलत किया, ये गलत, इस प्रोडक्ट पे ये प्रॉब्लम्स है, आपकी सर्विस में ये प्रॉब्लम है, बेटर करेक्ट इट। सो whenever customer when they complain, when needs as an individual, जब वो चाहते हैं बताना आपको कि भैया ये जो चीज जो है वो उसमें हुई है, ये प्रॉब्लम जो है वो उसमें हुए हैं। सो what is to be done? They wants to be heard out, they wants to be understood, they wants to be respected। जब कस्टमर आपसे कंप्लेंट करे तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, उनको जो है उसके कंप्लेंट को जो है वो इज्जत दी जाए। फिर व्हाट इज योर अप्रोच शुड बी? योर अप्रोच शुड बी कि इट शुड बी डेल्ट क्विकली, फेयरली एंड प्रॉपरली। एक चीज जो है वो बड़ी कंपनियों में ये एज ए केपीआई करके उसको मेंटेन किया जाता है, रिस्पांस टाइम। कि एक बंदे ने अगर आपको कंप्लेन किया, कंपनी की तरफ से रिस्पांस कितनी जल्दी गया। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी कंपनी में, मैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड जो कि सिगरेट बनाती है, मैं उसमें आई एम अ डीजीएम बीपीआई, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। एक मर्तबा जो है वो हमें एक टाइप की कंप्लेंट आई, ये खास कंप्लेंट है, ये ज्यादा मार्केट में फैली नहीं, क्योंकि हमने उसको जो है वो इमीडिएटली हैंडल कर लिया था, बट आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर। ये कंप्लेंट थी खास जो है वो कश्मीर से। कश्मीर से कंटिन्यूसली हमें जो है ये फोन आने लग गया कि आपने आपने सिगरेट का पैक देखा होगा, उसके ऊपर जो है वो एक पिक्चर बनी होती है जो ये बताती है कि हाउ डेंजरस इट इज टू स्मोक। तो उस पिक्चर को अगर आप रिवर्स कर दें तो उसमें इट वाज ऑल अनएक्सपेक्टेड, बट जो है उसको आप रिवर्स कर लें तो वो आपको जो है ना वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ दिखता था। मतलब वो शेप ऐसा था कि उससे जो है वो अब वो किसी ने देख लिया, किसी ने जो है वो फील कर लिया कि जो है यार ऐसा हो रहा है, और ले कस्टमर कंप्लेंट पे कंप्लेंट आने लग गई कि ये कुछ आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कंपनी ने इमीडिएट जो है वो एक्शन लिया, जो है वो इमीडिएट एक्शन लिया, और जो है वो मुझे उसका इंचार्ज बना दिया गया कि यू विल आंसर ऑल। मैं दिन में कुछ नहीं तो 20-20, 25-25 कॉल हैंडल करता था, एंड एवरीबडी को समझाने के लिए कि भैया ऐसा कुछ भी इंटेंशनल नहीं है, इट मे बी कोइंसिडेंस। और कंपनी ने इमीडिएटली, कैन यू इमेजिन, लाखों करोड़ों का जो वो पैक था वो सारा का सारा पैक जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। इट वॉज ऑल अनएक्सपेक्टेड, इसमें कोई वो ये नहीं था, लेकिन वो सारा का सारा पैक जो है वो उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और डिस्ट्रॉय करने के बाद फ्रेश उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो करेक्शन की गई ग्राफिक्स में कि वैसा दिखे नहीं, इवन रिवर्स करने के बाद भी उसमें करेक्शन की गई, और फिर वो करेक्शन किया हुआ जो है वो चीज भेजी गई। बिकॉज देयर वाज अ बिग रिस्क कि अगर जो है वो कोई इस तरह से कोई इसको और ये कर देता है तो फिर हमारा इतना बड़ा बिजनेस जो है वो चला जाएगा, एक पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो बेयर करते हुए कंपनी ने इमीडिएट एक्शन लिया और उसको जो है वो पूरा चेंज करके, और न सिर्फ ये बल्कि हमने दोबारा फिर काउंटर ये किया कि भैया आप ठीक है, हाँ हाँ सर आप ठीक है, अब कोई ये नहीं है, गलती नहीं है। सो दिस इज हाउ द बिजनेसेस आर रिटेन्ड एंड दिस इज हाउ द कस्टमर्स आर रिटेन्ड। सो टू बी गिवन व्हाट दे हैव बीन डिनाइड एंड परहैप्स एन अपॉलॉजी, इमीडिएट जो है वो उसको एक अपॉलॉजी
बंदा बैठा हुआ, मैं मुझे ही लगा दिया कि भैया यू कीप डूइंग एपोलॉजी, कि भैया आप ये कोई इंटेंशनली नहीं है. टू हैव एन एक्शन टेकन टू फिक्स अ प्रॉब्लम और एड्रेस अ कंसर्न रिजल्टेंट प्रोसेस चेंज. बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर रिकवरी क्या है? ओनली 4% ऑफ डिससेटिस्फाइड कस्टमर कंप्लेन, 96% लीव विदाउट एनी कम्युनिकेशन टू द बिजनेस. जस्ट इमेजिन दिस, कि अगर आपके जितने कंप्लेंट्स आए हैं, अगर आपके 100 कंप्लेंट्स हुए हैं, तो उनमें से सिर्फ 4 लोग ही आपको रिस्पॉन्स देंगे. ये एक स्टैटिस्टिक्स है. और अगर आप सोचिए कि आपने अगर उसको सिर्फ 4 ही पकड़ के चला, तो आपने कितना बड़ा लॉस कर दिया, क्योंकि बैलेंस 96% ने तो आपको कम्युनिकेट ही नहीं किया है. सो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज ए गिफ्ट, एंड इमीडिएटली आपको क्रॉस चेक करना चाहिए. और वॉलंटरली ऑल्सो यू कैन मेक एन एक्सेस टू द कस्टमर, कि भैया अगर उस बैच का, और अगर आपको वेरीफाई होता है कि यहाँ यहाँ हमने बेचा है, तो आप वॉलंटरली गए उनके पास, क्या इस पे ये छोटी सी मिस्टेक हुई है एंड वी आर गोइंग टू करेक्ट इट. यू कैन इमेजिन कि हाउ हैप्पी योर कस्टमर विल बी. उसका कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपकी सर्विस पे कितना बढ़ जाएगा. Of the 96% who leaves, 91% will never return. 96% जो उन्होंने कंप्लेंट की नहीं, उनमें से भी 91% जो है वो दोबारा आएंगे नहीं. A typical dissatisfied customer will tell 8 to 10 people about the issue with your business, significantly more in global communication. वो इस तरीके से जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है, गंदा है, खराब है. सिंपल चीज है. मुझे आज से 4-5 साल पहले एक सैमसंग की फ्रिज, मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा था, उसका मुझे बैड एक्सपीरियंस हुआ. मैंने आज तक जो है वो सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदता नहीं हूं मैं. ये पता नहीं, इसकी कोई लॉजिक शायद नहीं होगी, लेकिन एक ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी होती है कि एक बार उसका दिल ये हो जाता है कि उसने ऐसी चीज बनाई थी, क्योंकि वो पानी फैल के जो है वो जमीन पे आ गया था, और मैं उठकर, चूंकि आई एम अ डिसेबल्ड पर्सन, वो पानी मुझे दिखा नहीं और मैं स्लिप होके गिर गया. तो जिस फ्रिज में इस तरह का जो है वो पता ही नहीं चले, पानी जो है वो जमीन पे आ जाता है. उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी कंपनी है, कैन यू इमेजिन. लेकिन एक मिस्टेक से शायद एक डिफेक्टिव पीस आ गया होगा. लेकिन कस्टमर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कस्टमर ना कभी भी आपका एवरेज फील नहीं करता है. कस्टमर को अपना एक इंडिविजुअल इफेक्ट होता है. जैसे ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पिज्जा डिलीवरी सिस्टम्स को ले लीजिए, वो कहते हैं हम आधे घंटे के अंदर आपको जो है वो डिलीवर करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे. लेकिन आधे घंटे में वो कितने लोग करते हैं? वो सब कहते होंगे कि हम 95% लोगों को करते हैं. लेकिन जो 5% को नहीं करते हैं, उनका तो बहुत बैड एक्सपीरियंस होता होगा. तो आपका 95% आइडियली उन 5% लोगों के लिए कुछ भी नहीं है. तो कस्टमर जो है वो आपका एवरेज नहीं देखता कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि मेरे पास इतने सेटिस्फाइड कस्टमर है. वो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है, और जिस जिस बंदे को वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा, वो बंदा जो है वो उस तरह के डिसीजन जो है वो ले लेगा. So 1 in 5 dissatisfied customer will tell 20 people more about the issue. It takes 12 positive service incident to make up for 1 negative incident. और फिर वो जो नेगेटिविटी क्रिएट होगी ना, वो नेगेटिविटी हटाने के लिए 12 पॉजिटिव इंसिडेंट आपको जनरेट करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो जाएगा. सो देन यू कैन इमेजिन कि हाउ इंपॉर्टेंट इज टू हैंडल योर कस्टमर. पहली बात तो दैट्स व्हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मेरा एक स्ट्रांग मानना है कि किसी भी बिजनेस में रहना है, किसी भी बिजनेस में, वो चाहे ट्रेनिंग का बिजनेस हो या एक सिंपल जो है फुटपाथ पे खड़े होकर बेचने हो, क्वालिटी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. आप अच्छी क्वालिटी देंगे, डेफिनेटली कस्टमर इज बाउंड टू कम. क्वालिटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. ये अगर बात आपके भी समझ में आ जाती है इंशाल्लाह, तो आपको जो है वो उसको वो बात जो है वो देखेंगे. या फिर क्वालिटी की एक और डेफिनेशन होती है कि क्वालिटी कम्स एट कॉस्ट. तो जब आप कहें कि भैया ये क्वालिटी इतने की है, इसका इतना प्राइस है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी ये प्राइस है, दैट इज ऑल्सो गुड. कि एटलीस्ट आप ये बता के बेच रहे हो कि इस चीज में इतने पैसे में आपको ये क्वालिटी मिलेगी. लेकिन जहां आप बताते ही नहीं हो, वहां पर जो है वो यू मेक अ बिग मिस्टेक.
So 7 out of 10 complaining customers will do business again with you if resolve the complaint in their favor. अगर आप उसको solve कर देते हैं तो they will continue. At least 7 out of 10. Of complaining customer, 95% will do business with you again if you resolve the complaint at the first contact. अगर पहली बार में ही आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो जो है वो चांसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस बिकम्स मोर, कि चलो होता है। लेकिन आप उसको रखड़ा रहे हो, आज नहीं आओ, कल आओ, परसों आओ, देखूंगा मैं, अभी नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि आपको लगा कस्टमर तो बिक तो गया है, अभी छोड़ दीजिए, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट कस्टमर अगेन। It costs 6 times more to attract a new customer than it does to retain customer one, to retain current ones. 6 टाइम्स ज्यादा आपको एफर्ट जो है वो लगता है एक नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपेयर टू रिटेन इट। कस्टमर लॉयल्टी इज वर्थ 10 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ सिंगल परचेज। द मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स आर ऑनेस्ट। अच्छा, एक ऐसा भी बिजनेस करने वालों में क्या होता है, अरे छोड़ यार, वो कस्टमर ही नालायक है, ऐसा है, उसका तो काम ही ऐसा है। आई एम श्योर ऐसा भी आपको ये होता होगा। जैसे हम जब हमारी सिगरेट का बिजनेस करते हैं, उसमें अगर हमें एक भी कंप्लेंट आती है कि भैया ये मालब्रो के अंदर जो है ना आपके वो थोड़ी सी लूज एंड मिल गई, अगर ये कस्टमर की कंप्लेंट हमारे तक जब आती है तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम जाके उसको जो है वो एक नया पैकेट ही फुल दे देते हैं कि भैया ठीक है, आपको 10 सेटिस्फेक्शन हुआ, या आप रख लीजिए, पूरा पैकेट रख लीजिए। फुल पैकेट जो है वो 1000-1500 रुपए का आता है, बट वो हम दे देते हैं। लेकिन कहीं कहीं लोग उसमें चीटिंग करते हैं, वो बार बार कंप्लेंट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कंपनी आगे हमें एक नया ही दे जाएगी। तो वहां देर वी ऑल्सो कीप अ ट्रैक कि ये बंदा बार बार क्यों कंप्लेंट कर रहा है, इसका मतलब ये उसने कुछ बिजनेस बना लिया है कि कंप्लेंट करो और नया ले लो। तो ऐसे आपको मिलेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर ऑनेस्ट। 1 to 4% ऑफ कस्टमर सिस्टमेटिकली चीट द बिजनेस। तो 4%, 1 से 4% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो चीटिंग करेंगे, कंप्लेंट दे दे के जो है, अगर वो जीनियन कंप्लेंट नहीं है तो। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो कंप्लेंट के अंदर जो है वो ऑनेस्टी होती है। सो इफ अ कस्टमर इज कंप्लेनिंग, यू आर बीइंग गिवन अ चांस टू रिटेन दैट कस्टमर। ये अगर आपका एटीट्यूड है और आपका अप्रोच है, so there is full chance that you are going to retain your business. Every complaint, if you treat it as a gift, then unwrapping the gift means what? Free direct communication from customer about service failures, competitors offering no survey call, because complaint कर रहा है तो वो देखिए how is helping you, आपको एक तरह की वो मदद कर रहा है कि आपको जाके सर्वे नहीं करना पड़ा कि भैया क्या कंप्लेंट आई है, वो खुद आगे से आके आपको कंप्लेंट कर रहा है, बता रहा है। ही इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंप्रूवमेंट। रेडीली अवेलेबल मार्केट रिसर्च कंप्लेंट्स डिफाइन व्हाट कस्टमर वांट्स। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चीज जो है वो खराब लगती है और क्या अच्छी लगती है। इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज कस्टमर ट्रस्ट। आप देखिए, जब आप आपके कस्टमर को हैंडल करेंगे, हाउ हैप्पी ही विल बी, उसका ट्रस्ट आप पर कितना बढ़ जाएगा कि यार ये कंपनी कितनी अच्छी है, इसने जो है वो हम पर ट्रस्ट किया, हमको बताया और हमें रिप्लेसमेंट दे दिया, या हमारी हेल्प की, हमको रिपेयर करके दे दिया, करेक्ट करके दे दिया, वॉट एवर इज द मिस्टेक। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कस्टमर्स विल रीपरचेज इफ दे बिलीव द कंप्लेंट्स आर वेलकम। वो जब उसको ये लगेगा कि ये बिजनेस वाले या ये कंपनी जो है वो हमारी कंप्लेंट को सुनती है, तो दे विल रीपरचेज आल्सो, विल बी वेलकम्ड। अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई सर्विस फेलियर्स, अपॉर्चुनिटी टू एंगेजिंग कस्टमर एज एडवोकेट्स। अगर वो आपका एडवोकेट बन गया वो कस्टमर, सो यू कैन इमेजिन आपको उतनी सेल्स और मार्केटिंग आपकी बच गई। वो खुद ही बंदा 10 जगह और बोलेगा कि यार ये कंपनी अच्छी है, इसके अंदर अगर ये प्रॉब्लम आता है तो वो लोग करके देते हैं, they will change it. So what any customer want, basically it's a value for money. Good, cheap and fast, or quality, low price and on time delivery, and the one more innovation means what? Of course customer को जो है वो सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए। ये कस्टमर की मेंटालिटी है कि उसे अच्छी चीज भी चाहिए, सस्ती भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए।
ये हर एक को मालूम है, लेकिन एक साथ में उसको एक और भी चीज चाहिए, और वो है इनोवेशन। ये आपको शायद एक और प्रोग्राम पिछले 1-2 हफ्ते में शायद हुआ है रिफा की तरफ से, इनोवेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये इनोवेशन अगर आपके बिजनेस में आ जाए, नयापन जो है वो लाने की आप कोशिश में लगे रहे, तो यू विल सी दैट हाउ योर बिजनेस विल चेंज। एक ही टाइप का स्टीरियो टाइप प्रोडक्ट बनाते रहना और कंटिन्यूअस उसी को बेचते रहना, वो ज्यादा दिन आपको रखेगा नहीं मार्केट में। अनलेस यू कीप थिंकिंग कि आपकी कस्टमर को क्या चाहिए, नया मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे लोग जो है वो आप देखिए, वो जब ये बहुत एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा जब टाटा इंडिकॉम जो है वो ये आया था मार्केट में, तो उसने जो है और उसके पास जो है वो पुराने टाइप के फोन थे, और वो स्मार्टफोन नहीं थे, और स्मार्टफोन जो है वो नया नया आया था, तो वो कैसे एडवर्टाइज करता था, फोन होता है बात करने के लिए, आपने सुना होगा शायद जो पुराने लोग होंगे, उस वक्त वो ऐड आती थी उसकी टाटा की कि फोन होता है बात करने के लिए, क्योंकि उसके पास वो नहीं था। बट ही कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, क्योंकि मार्केट जो है वो इनोवेशन की तरफ जा रही थी, स्मार्टफोन आ रहे थे, उसमें नए नए फीचर्स आ रहे थे। तो जब मार्केट चेंज हो रही हो, लोग नए नए तरीके ला रहे हो, नई नई स्टाइल्स ला रहे हैं, नए नए प्रॉब्लम जो है वो चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को, उसमें आप आपकी पुरानी स्टाइल की चीज लेके बैठे रहोगे तो वो कितने दिन तक आप मार्केट में टिकेंगे। बहुत जल्दी आपको जो है वो कोई और शूट कर लेगा या ओवरटेक कर लेगा। ये तो इतनी फास्ट कंपटीशन चलता रहता है कि लोग एक दूसरे की डेथ देखना चाहते हैं कि कब मैं उसको खत्म करूं और मेरा प्रोडक्ट जो है वो आगे चले। ये भी हम मुस्लिम प्रोडक्ट जितने जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं कि ये सब चीज बड़े लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, ये छोटे छोटे बिजनेस के लिए तो और भी ज्यादा एप्लीकेबल है इनोवेशन। जब तक आप इनोवेशन के बारे में सोचोगे नहीं, कुछ नयापन लाने के बारे में सोचोगे नहीं, तो आपका बिजनेस कहां से आगे बढ़ेगा। तो कस्टमर रिटेन करना तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, लो प्राइस, क्वालिटी और डिलीवरी तो दो, लेकिन साथ में कुछ इनोवेशन पर भी काम करो, और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन दिस इज समथिंग फ्यू ज्ञान है, I mean, which you can go through those things, like customer wants personalized interaction. उनके साथ personalized interaction करो, he feel goods. Customer want help fast, and everything has got a time bound value. और प्रॉब्लम उसको आज है, उसके चीजें अब नहीं चल रही है, आपने उसको 10 दिन बाद रिस्पॉन्स दिया। मैंने कहा ना, अच्छी अच्छी कंपनियां जो है वो रिस्पॉन्स टाइम को ट्रैक करती है। इनफैक्ट वो ये ट्रैक करती है कि जिस दिन बंदे ने कंप्लेन किया और कब उसका ये फीडबैक आया कि नाउ माय प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसमें हमें कितना टाइम लगा। तो कहीं उसका टाइम होगा 4 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां उसके टारगेट लेती है कि ये हमारा ऑन एन एवरेज 5 दिन लगता है एक कस्टमर को सेटिस्फाई होने में, कंप्लेन टू सेटिस्फेक्शन। हम उसको 2 दिन कैसे बना सकते हैं? हम ऐसा क्या करें कि 2 दिन में कस्टमर कंप्लेंट करे और हम जो है वो उसको एड्रेस करें और उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। बिकॉज कस्टमर की वो एक्सपेक्टेशन है कि उसके प्रॉब्लम को फौरन सुना जाए। So I hope you are convinced that for any business, what is most important is customer. Thank you very much. अब अगर कोई सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतर परवेज साहब। हम आप क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्वेश्चन आंसर का सिस्टम वही रहेगा सेम इंशाल्लाह। सब लोग अपना हाथ रेज करेंगे। पार्टिसिपेंट्स नीचे जो आपका स्क्रीन पे मैनेज पार्टिसिपेंट्स आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके रेज हैंड कर सकते हैं। जिसका भी हाथ रेज, आप वर्चुअली हाथ रेज करेंगे, फिर आपको जो है मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह सवाल पूछने का। किसी का अगर सवाल है तो आप रेज हैंड कीजिए। उससे पहले आपको एक काम करना है कि अगर आपका नाम आपने रीनेम नहीं किया है तो आपको रीनेम करना है। अगर रीनेम नहीं करेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि कौन पार्टिसिपेंट जो है सवाल पूछ रहे हैं। अभी एक जो पार्टिसिपेंट्स कॉलम में मेरे को एक नाम दिखाई दे रहा है, 1HK 3QM 5TAML, ऐसा नाम दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम नहीं बता सकते कि हम भी पता नहीं लगा सकते कि ये कौन शख्स है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है अपना नाम रीनेम कीजिए। रीनेम करने के लिए प्रोसीजर इजी है। आपके स्क्रीन का पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड के कॉर्नर में 3 डॉट्स आएंगे। वो डॉट्स को आप क्लिक करेंगे और वहां पे आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आप आपका नाम रीनेम कीजिए।
इंशाल्लाह रफीक साहब आपका सवाल पूछिए, रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, जज़ाकल्लाह। वालेकुम। बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारे नए चीजें सीखने का मौका मिला। परवेज साहब, मेरा कंसर्न था कि मतलब हर कोई चाहता है कि मतलब अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दे, फास्ट डिलीवरी दे, और फिर वो कस्टमर जो है परमानेंटली अपना हो जाए। मगर ये जो है मतलब ऐसा ही नहीं होता। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कस्टमर को लेना बोलता एकदम प्राइस को एकदम कम करके लेना पड़ता। ऐसे में ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो सकता? नहीं देखिए, मार्केटिंग के जो लोग हैं वो समझते हैं कि प्राइसिंग भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप उसको कैसे प्राइस करते हो, क्या सिचुएशन पे प्राइस करते हो, आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, वो उसके ऊपर आप और डिसाइड करते हो कि क्या प्राइस है। बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि आप कस्टमर को रिटेन कैसे करेंगे। सी, खरीदेंगे आपके साथ वो कस्टमर तो उस वक्त बनेगा जब वो खरीदेगा। हम बात ये कर रहे हैं कि जब वो एक बार आपसे खरीद ले तो आप उसको कैसे रिटर्न करेंगे। मार्केटिंग ये फील्ड होती है कि किसी तरीके से वो आपको एक बार तो उस कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले। ओके, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि किसी किसी तरीके से उसको घसीट के एक बार आपकी दुकान में ले आए। अब वो आ गया एक बार आपकी दुकान पे या आपके बिजनेस की आपका प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो यहाँ से आपका काम शुरू होता है कि एक बार अगर उससे खरीद लिया तो वो दोबारा दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा। अब आप उसको रिटेन कैसे करेंगे, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। जी जी, आप समझ रहे हैं? तो वो आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस फील्ड में आप कैसे लाएं कस्टमर को, उसके लिए हम कोई और वेबिनार कर सकते हैं जिसमें हम ये डिस्कस करें कि जो है वो मार्केटिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से अगर वो बंदे ने एक बार आपसे खरीद लिया है, ओके, तो वो कैसे फिर आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। नहीं, मगर अभी मार्केट ऐसा कॉम्पिटेटिव है, हर बार वो एक कस्टमर जो है 4 जगह 5 जगह से मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 3 कोटेशंस लेना है, तो हर बार नए ही कस्टमर है हमारे लिए। हाँ, तो आप उसमें कॉम्पीट कीजिए ना। आप कस्टमर कोटेशंस मांग रहे हैं जो आपके, मैं ये कह रहा हूँ कि यू शुड बी फेयर। जो आप कोटेशन में कंडीशंस दे रहे हैं, जो आपको क्वालिटी आप कमिट कर रहे हैं, आप वो सारा कीजिए। अब बाकी तो यार वी ऑल नो के रोजी देने वाला अल्लाह ताला, अगर आपकी किस्मत में वो लिखा है तो वो आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उसमें कोई चीजें फॉल्स कमिटमेंट कर दी टू टेक द ऑर्डर और फिर आपने आपने वो फुलफिल नहीं कर सके, देन यू विल लूज इट परमानेंटली। बट पहली बात तो जो आपकी कॉम्पिटिटिव, जो भी आपकी टेक्निक्स है कॉम्पिटिटिव बनने की, वो तो आपको जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप आई एम आंसरिंग। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हम उसमें कैसे कॉम्पिटिटिव रहे। हम कहें वो तो आपको ढूंढना है कैसे कॉम्पिटिटिव रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से भी आप कॉम्पिटिटिव रहे कि अगर आपने एक बार वो बिजनेस ले लिया या वो ऑर्डर ले लिया, तो अब उस ऑर्डर से आपको एक अपॉर्चुनिटी पैदा करनी है कि ये बंदा एक बार मेरे पास आया ना, अब दोबारा वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, अब वो मेरे पास ही रहेगा। एक बार खरीद लिया तो ऐसी चीजें आप पैदा कीजिए, आपकी कस्टमर हैंडलिंग ऐसी हो, आपका कंप्लेंट हैंडल करने का तरीका ऐसा हो, आपका उसको डिलीवरी करने का तरीका ऐसा हो कि अब वो दोबारा जो है वो दूसरे के पास जाएगा नहीं, वो ढूंढ ढूंढ के आएगा आपके पास कि नहीं मुझे यहीं से लेना है। दैट्स व्हाट वी डिस्कस। मसूद दलित साहब, मसूद दलित। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका अस्सलाम वालेकुम। और एक ही बार सवाल पूछिए आप, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं। सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा मिला जुला ये जो इसके पहले जिनने सवाल किए थे। फॉर एग्जांपल, एक सोलार रूफटॉप इंस्टॉलेशन का मेरा एक इरादा है, अभी स्टार्टअप नहीं हुआ है। जैसे आपने कहा था कि एक इनोवेटिव तरीका लेना है। अभी जैसे सोलार रूफटॉप के लिए तो प्रोटोटाइप तो सेम ही है कि कोटेशन देना है और फिर डिजाइन करके एग्जीक्यूशन करके ये देना है। इसके अलावा एज अ, जैसे आपने बोला था कि वाव इफेक्ट है, तो एक रेडीमेड ड्रेस मटेरियल या सिगरेट की कंपनी है या सिगरेट का प्रोडक्ट है, उसके बनिस्बत में एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये किस तरह से वाव इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या इम्प्रेस कर सकते हैं कस्टमर को, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता। मैंने तो जो एग्जांपल दी आपको वो सर्विस बिजनेस की थी, होटल की। जी जी, ये तो सर्विस बिजनेस ही है। तो इसी देखिए वो आपके बिजनेस की वो माइनर डिटेल्स या फाइनल डिटेल्स है, वो आपको सोचनी पड़ेंगी जी कि जी, मैं किस तरीके से उसमें वाव इफेक्ट लाऊं। अभी वो तो मेरे पास तो कोई उसका रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है।
लेकिन आपके जी अपने जी हर आदमी यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं वो सब अपने बिजनेस में तो माहिर है, यानी हर जी एक को मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा टॉपअप ही कर रहा हूँ उस चीज के अंदर कि हर जी आदमी को जी ये पता है कि अपने जी बिजनेस की क्या फाइनल पॉइंट है, तो वाव इफेक्ट जो देना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ये आप लोग देखिए, मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, मैंने पिछली जी वेबिनार में भी कहा था, अक्सर ये जी जी छोटे छोटे बिजनेस वाले जो होते हैं ना, ये सिंगल मैन की इसमें ही चलते रहते हैं, जो ओनर है सिर्फ उसी को पड़ी है। मैं जी ये जी कहता हूँ कि आप थोड़ा पार्टिसिपेटिव अंदाज जो है वो अपनाइए, हमारे हुजूर ने भी कहा था मशवरा करके जो है वो काम करना चाहिए। तो यही चीज को जी नई शक्ल में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग देते हैं, डिस्कशन देते हैं, उसको बड़े बड़े जार्गन वर्ड्स जो है वो दे देते हैं। ओके, जी तो आपका छोटा सा बिजनेस है जिसमें 4 लोग भी इन्वॉल्व हो, तो वो 4 लोग मिलके बैठो, एक घर में एक जगह बैठ जाओ, एक बंद कमरे में, और सोचो कि यार अगर हमें वाव इफेक्ट देना है तो कैसे दें, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ओके, कि तो जब 4 लोग अपनी आइडिया लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो आइडिया आएगा। अल्लाह ताला ने दिमाग तो फ्री में दिया है, ये सही मतलब बात है, वो। सही बात है, सही बात तो दैट्स व्हाट, तो ऐसे में सोचिए कि आपको अकेले ही सोचना है, आपको पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ डिस्कशन जो है ना, ये आपको जानना चाहिए। और हमेशा अगर आपकी और बड़ी कंपनी है जिसमें 10-12 लोग काम करते हैं, तो आप उनसे भी मशवरा लीजिए। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो जो बेचारा मजदूर है या जो छोटे मोटे काम करता है ना, उसको कोई अकल नहीं होती। मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है कि ज्यादा अकल वाले यही होते हैं, ये कभी कभी ऐसा दिमाग दे देते हैं, आइडिया दे देते हैं आपको, जो है वो जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, हमने हमारी कंपनी में एक कैंपेन शुरू किया कि सारे लोग तो यार घर ही में है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सैलरी तो सबको देनी है, बीइंग अ बिग कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो सैलरी तो सबकी चालू ही है, कोई ये नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना यार वो टाइम यूज किया जाए, हमने कैंपेन चला दिया आइडियाज का, इनोवेटिव आइडियाज दीजिए अपने अपने एरिया में, आप जो है वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं। पूरा फ्लड आ गया, इतनी लोगों ने आइडिया दी। अब उस 150-200 आइडियाज में से 20-25 भी अच्छी आइडियाज मिल गए, तो आपको आगे के बिजनेस के लिए तो आपका काम अच्छा हो गया, आसान हो गया, राइट। है। तो इस तरह से आप कीजिए, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो आइडिया, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही। यस। मुंतसिर उद्दीन साहब, मुंतसिर उद्दीन साजिद। जी अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। जी परवेज साहब, मेरा ये सवाल ये था कि हम हाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एनसीआर हाँ का किस कदर सपोर्ट ले सकते हैं नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट के जरिए से, खासतौर पर ऐसे कंपनीज जो कि गारंटीड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जहाँ पर के रिप्लेसमेंट के इश्यूज रहते हैं, या फिर ये कि क्रेडिट में सेल करे बाद में बैलेंस नहीं आया तो सेल रिटर्न के इश्यूज रहते हैं। इसमें एनसीआर से हम किस कदर सपोर्ट ले सकते हैं हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए? नहीं, नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग के ही वक्त पे जो नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है उससे आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, सेल्स रिटर्न जो आता है उसका बोल रहा हूँ। सेल्स रिटर्न दो भी तरह का, एक हाँ तो विदाउट यूज गुड जो कि हम सेल करे थे लेकिन वो लोग क्रेडिट में रहने की वजह से पेमेंट नहीं करने के बजाय, पेमेंट करने के बजाय सेल रिटर्न कर दिए। दूसरा हाँ। रिप्लेसमेंट किसी भी इशू से रिलेटेड तो सब्जेक्ट। नॉन कन्फॉर्मेंस कब वे करेंगे वो लोग? उसी वक्त करेंगे ना जब वो जो जो स्पेसिफिकेशन का उन्होंने मांगा था वैसा उनको नहीं मिला, इसलिए वो उसको नॉन कन्फॉर्मेंस बोल के रिटर्न कर देंगे, करेक्ट ना? यस यस। हाँ, तो अब आप सोचिए कि जब वो नॉन कन्फॉर्मेंस आपको दे रहा है, इट इज वन काइंड ऑफ थिंग कि वो रिजेक्ट कर रहा है आपके माल को। अब रिजेक्ट कब करेगा? जब जो क्वालिटी का एग्रीमेंट हुआ होगा आपके साथ, वो आप क्वालिटी उसको नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ही विल रिटर्न टू यू। यस तो सर। तो उस चीज को आपको ये रिवा आपकी टीम में जाके सोचना है कि ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाई पीपल आर रिजेक्टिंग, हमारा कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ गलती हो रही है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कि जो है वो इस टाइप के कंप्लेंट्स आ रही है। तो डेफिनेटली शायद आपके प्रोसेस में कोई चेंज करना होगा पड़ेगा आपको कि इस तरह की जो है वो कंप्लेंट जो है वो उसकी डिटेल पहले तो एनालिसिस करनी होगी कि क्या नॉन कन्फर्मेंस हुआ है, कहाँ हुआ है, ताकि उस एरिया को करेक्ट करें और वो दोबारा नहीं हो। Actually, we are getting so many points in NCR. So, is it compulsory for us to address to each and every point? ऑफ कोर्स, बहुत ही सिली इश्यूज भी रहते हैं, बट वही जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में एक दिन लेट माल पहुंचा इसलिए भी रिटर्न कर दिया। नहीं, तो ये सिली पॉइंट नहीं है ना। अभी आप देखिए, हमने वो लास्ट में यही तो कहा कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए और ऑन टाइम डिलीवरी भी चाहिए। अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दोगे या जो कमिटेड डिलीवरी है
उसमें नहीं दोगे तो कस्टमर नहीं लेगा ना, वो तो उसको डिससेटिस्फेक्शन आएगा। एक चीज चाहिए थी मुझे, आप दोगे कल तो मेरा तो डिससेटिस्फेक्शन होगा ही ना। तो ये सिली चीज नहीं है, तो हमें हमारी थिंकिंग भी चेंज करनी चाहिए कि भाई कस्टमर के हमारे लिए ये सिली लग रही है बट उसके लिए नहीं है वो सिली। उसको तो वो तो पैसा दिया ना, कहते हैं कस्टमर इज किंग। वो जो बोलेगा हमें उसको फॉलो करना है पड़ेगा। ही इज समथिंग बड़ी हु इज गोइंग एज द बिजनेस, राइट। जी जी। शमशुद्दीन अंसारी साहब, आपका सवाल पूछिए। जी भाई, मैं हजरत बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा आवाज जोर से। हाँ, आ रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत अच्छा जो है प्रेजेंटेशन दिया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में। हाँ, और मैं इन बातों का बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन जो वॉ इफेक्ट वाली आपने बात कही वो है तो बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। हाँ, लेकिन जैसे मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो भी काम करता हूँ उस पर बहुत ही कॉम्पिटिटिव चार्जेस रखता हूँ। हाँ, और हमारी हमेशा एक कोशिश रहती है कि अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहे। हाँ। लेकिन वहां पर हमारे पास वो इफेक्ट लाने के लिए मार्जिन बचता नहीं है। तो ऐसे हालात में क्या करें? हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखते हैं लेकिन वो इफेक्ट देने के लिए मार्जिन नहीं है, तो उसको कैसे हल करें सर? व्हाट कैन आई आंसर? अब ये देखिए, ये तो आपको डिसाइड करना है कि अगर वाव इफेक्ट से आपको पहले कस्टमर अक्वायर करनी है तो आपको यू मे हैव टू टेक इट एज ए एक्सपेंस इनिशियल के। जिस तरह आप आगे चल के मार्केटिंग में कुछ खर्चा करेंगे उस चीज को मार्केट करने के लिए, वही समझो आप क्या दे रहे हैं खर्चा, उतना आपका मार्जिन जो है वो कम करके दे रहे हैं ताकि इससे कुछ जो है वो कस्टमर बेस बढ़े। आई मीन दिस इज समथिंग विच आई थॉट इमीडिएटली। ये ठीक है, मैं कबूल हाँ, करता हूँ आपकी बात। हाँ। तो वो तो आपको सोचना है कि किस तरीके से जो है वो देना है। ऑब्जेक्टिव जब ये है कि मुझे और कस्टमर बेस बढ़ानी है, नए कस्टमर को अक्वायर करनी है। देखिए एक और चीज होती है, मैं कह रहा हूँ मार्जिन जब हम बात करते हैं ना, मार्जिन नहीं होता, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा शायद कि हमारे जो है वो हमें प्रोडक्ट में इतना मार्जिन ही नहीं मिलता। आप में से कितने लोगों ने जो है वो उसका बैक एनालिसिस किया है कि हमारे यहाँ वेस्ट कहाँ पर होता है? आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, समझो वो चीज फाइनली आके आपको 25 रुपए में पड़ या 50 रुपए में पड़ती है, आप आपका मार्कअप करके कुछ उस पर ऐड करके 75 रुपीज में बेचते हो, ओके, या बहुत कंपटीटिव में जाते हो तो 10 रुपए कमाते हो। तो आप जब वो 50 में आपको वो कॉस्टिंग पड़ रही है तो आप देखो ना आपका वेस्ट कहाँ हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम उस वेस्टेज पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जो कि हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज पता चला, एक ही चीज को हम 2 बार लेके आ रहे हैं, वहां पे डबल खर्चा हो रहा है, आने जाने का ट्रांसपोर्ट वेस्ट हो रहा है, कहीं लेके जो है वो चीजें आके पड़ी है सड़ रही है, इसके लिए वेस्टेज हो रहा है। तो कभी आप एक तरह का इस तरह का बैकवर्ड थिंकिंग भी कीजिए कि उसकी पूरी कॉस्टिंग कीजिए और देखिए कि कहाँ पर वेस्टेज हो रहा है और उस वेस्टेज का ट्रैक रखिए। तो आपको ऑटोमेटिकली समझेगा कि ये जो मार्जिन वाला चक्कर है ना, ये अक्सर जो है ये वेस्ट खा जाता है। तो कहाँ वेस्ट हो रहा है वो भी देखिए आप। अक्सर लोग ये खासकर छोटे बिजनेस वाले ये सब देख ही नहीं पाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो चूंकि वो डिपार्टमेंट होते हैं, लोग होते हैं और डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग होती है तो वो पकड़ में आ जाता है। छोटे बिजनेस में ये सब चीजों का रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। मेरा एक और भी मशवरा होगा कि जहां तक हो सके ना उसकी कॉस्टिंग की अकाउंट्स भी आप प्रॉपर रखिए, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या वेस्ट हो रहा है। और फिर आपको वहां से कोई जो है वो निकल के आएगा कि यार ये पर्टिकुलर है खर्चा है ना, ये वेस्ट है, ये अगर मैं बचा लूं तो मेरा मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए पैसा कमाने के 2 तरीके, या तो आप प्राइस बढ़ा दीजिए या फिर खर्चे कम कर लीजिए, करेक्ट। तो प्राइस बढ़ाने के लिए तो आपको एक मार्केट का एक कंस्टेंट है कि आप ऐसी मार्केट नहीं है कि आप कुछ भी प्राइस मांगोगे लोग दे देंगे, लेकिन खर्चे क्या करने हैं वो तो आपके हाथ में है ना। तो उसको आप कंट्रोल कीजिए, ऑटोमेटिक आपका मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। मैं एक बात आपकी बहुत पसंद किया कि अगर मैं अपने वेस्ट को खत्म कर देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ, हाँ, तो उससे जो मुझे मार्जिन मिलता है, जो मेरा मार्जिन बच जाता है वेस्ट की वजह से, उससे मैं वो इफेक्ट ला सकता हूँ। यस, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सादत हुसैन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। परवेज साहब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रहा सेशन। मेरा सवाल ये है परवेज साहब की एक स्लाइड में आपने बताया था कि 96% में से 91% रिटर्न होने का चांस नहीं है। हाँ। और दूसरे स्लाइड में आपने ये बताया था कि भाई 10 में से 7 को जो है हम फिर से जो है
रिटर्न बैक कर सकते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। यस, हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझिए। हाँ वो मेरे ख्याल से उस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम उतने नंबर को ना ध्यान देते हुए उसका जो मोटा मीनिंग है वो आप देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी हैव टेकन फ्रॉम गूगल। ओके, तो वो ऐसे वो हमने तो खुद से तो जाकर वो हमने सर्वे नहीं किया है, बट इवन आई हैड आल्सो नोटिस्ड इट। ये जो आप कह रहे हो वो मैंने भी नोटिस किया था कि उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, बट पॉइंट जो लेना है समझने का है वो दूसरा है। वो ये कि हम कस्टमर की कंप्लेंट को एज ए गिफ्ट लें, हम उसे एड्रेस करें, ताकि जो है वो हम हमारी कस्टमर बेस को जो है वो रिटेन रख सकें। आई थिंक अगर हम वो देखें तो ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू दैट स्टैटिस्टिक्स, दैट नंबर। ये नजीर साहब आपका सवाल पूछिए। नजीर साहब, नजीर साहब, नजीर साहब नहीं है तो दूसरा सवाल लेंगे हम लोग। सुहाग, सुहाग 158, सुहाग। नजीर साहब आपका सवाल है। हेलो, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा एक कंसर्न ये है कि वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, लाइक मेरा जैसे आपने वो मैकडोनाल्ड का, सॉरी ये डोमिनोज का एग्जांपल दिया, उनका ऑर्डर प्रोसेसिंग वैल्यू ज्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी उसके ज्यादा है, नंबर ऑफ आउटलेट्स भी ज्यादा है। ओके, तो इन दैट सिनारियो 5% उसके लिए लाइक नॉट अ बिग वो है कि उनका 95% सक्सेस रेट है, 5% उनका फेलियर रेट है। तो उन्होंने वैसी उनकी सिस्टम भी बनाई होगी कि दे कैन रिट्रीव द 5% ऑल्सो, कि उनको कैसे वो रिटेन कर पाए। नेक्स्ट टाइम कोई फ्री डिलीवरी दे सकते हैं या कुछ भी ऐसा करके, फ्री पिज्जा दे सकते हैं, ऐसा कुछ करके। तो ऐसे मॉडल में सपोज अपने यानी जो हमें कुछ, अगर हमारे वी आर बिलोंग फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी, तो अगर वहां पे उनको कुछ ऐसा क्रिएट करना है तो व्हाट वी कैन डू लाइक दैट, और उसको एनालिसिस कैसे किया जाए कि हम में से कितने वो सक्सेस रेट है और फेलियर। मैं कह रहा हूँ कि जो फीडबैक हमारा है वो हम कैसे उसको ट्रैक कर पाए सर, क्योंकि वी हैव द लाइक। आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, मतलब किस टाइप की ये? लाइक वी आर इन होटल्स, वी हैव द रेस्टोरेंट्स, वी हैव 3 or 4 आउटलेट्स आल्सो। ओके ओके, बहुत सिंपल है ना। देखिए जो कंप्लेंट्स आती है उसको आप एक रजिस्टर बना के रखिए, उसमें रिकॉर्ड कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। और सेकेंडरी सर उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि सो मेनी टाइम वी फेस द इश्यूज जो आपने बताए कि कस्टमर ये होता है कि जैसे आपने वो सिगरेट का एग्जांपल दिया कि कस्टमर हर बार वो अननेसेसरी डिमांड करता है कि वो जेन्युइन नहीं होता है। और आपको भी पता है कि हॉस्पिटैलिटी में ये केस ज्यादा होते हैं कि कंपेयर टू, तो उसको हम एक लेवल तो हमें वहां पे भी वो प्रॉब्लम आता है कि उसको हम कैसे उसको। तो पहली बार में तो आप बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे देंगे, पहली बार में तो हम किसी के ऊपर भी शक नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन अगर वो बार बार रिपीट हो रही है, उसी बंदे की हो रही है, या कोई इस तरह का आपको उसमें कोई हिडन मोटिव किसी का समझ में आता है, तो वहां आप एक्शन ले सकते हैं। एक्शन मींस इस तरह के कि नहीं यार ये तो बनावटी कंप्लेंट है, जीनियन नहीं है, वो डिसीजन तो आपको ही लेना है। कहने का मतलब है कि हम सभी को वैसा ना ट्रीट करें, क्योंकि बहुत सारे जीनियन होते हैं, तो अगर उसमें से कोई जीनियन को आपने वैसा कर दिया तो यू विल लूज द कस्टमर। ओके, और सेकेंडरी सर ये था कि जैसे उसमें एक ही कस्टमर मेरे 3-4 जैसे उसको फूड का एक्सपीरियंस लेना है, उसको रूम का एक्सपीरियंस लेना है, और कहीं ना कहीं इतनी लंबी एक्सपीरियंस चेन में कहीं पे उसको सडनली एक आध कोई इश्यू के लिए प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए हम पूरा बिजनेस लॉस कर देते हैं। तो उससे कैसे रिकवर किया जाए? रिकवर किया जाए मतलब मैं समझा नहीं। उनको कैसे रिटेन किया जाए? मतलब सपोज एक गेस्ट को रूम में प्रॉब्लम आया बट दे आर हैप्पी विद द फूड एंड अदर सर्विस आल्सो, और कुछ गेस्ट को ऐसा हुआ कि सपोज उनको कुछ फूड में थोड़ा बहुत इशू हुआ बट दे आर हैप्पी विद द रूम सर्विस, रूम फैसिलिटीज एंड लाइक दैट। हाँ देखिए ये अगर आप समझ गया हमें, तो ये ऐसा है कि होटल इंडस्ट्रीज में तो ज्यादातर कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट्स आती रहती हैं, राइट। लेकिन आपको ये देखना है कि कैसे में आपका टारगेट जो है वो 0 का हो। अगर आपकी रूम सर्विस अच्छी है, फूड अच्छा है, तो यू शुड बी हैप्पी कि मेरा ये पार्ट तो अच्छा है।
अब मेरी सिर्फ जो है वो रूम की कंडीशन समझो, कहीं हाइजीन या हाउसकीपिंग का इशू है, तो उस एरिया को भी आप इम्प्रूव करो। आप आपका इंटरनल देखिए, आपको अपने इंटरनल टारगेट भी जो है ना कंटिन्यूअसली चेंज होते रहना है। आप अगर ये सोच के बैठो, कोई भी बिजनेस वालों के लिए ये कॉमन है, जैसे पहला वो पुराना जमाना था जब लोग सोचते थे कि एक गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई तो अब लाइफ अपनी बन गई। अब कुछ नहीं, अब तो ऐसा हो गया है कि नौकरी हो या बिजनेस हो, हर जगह आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट और इनोवेशन के बारे में सोचते रहना है, कंटिन्यूअसली ये कोशिश करना है, क्योंकि मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि कौन कब आपको छोड़ देगा मालूम नहीं। कंपनियों का भी यही हाल है, कब आपको निकाल दिया जाएगा। अब ये कोरोना इफेक्ट चल रहा है, देखिए आप, ये जब लॉकडाउन खुलेगा तो कितने लोगों के जॉब चले गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उनके पास बिजनेस ही नहीं होगा। तो अपने आप को कंटिन्यूअस अपडेट रखना और जो लोगों को ऐसी सर्विस देते रहना, और टारगेट इंटरनल रखना कि ठीक है 4 एरिया में मैं अच्छा हूँ, 5वां मेरा पुअर है, तो मैं वहाँ कैसे अच्छा हूँ ताकि मेरी वहाँ की भी कंप्लेंट कम हो। इंशाल्लाह आप देखोगे कि आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाएंगे। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। मसूद साहब, आपका सवाल कुछ रह गया था क्या? हाँ सर, एक छोटा सा सवाल था, पता नहीं लिंक्ड है कि नहीं, यानी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में कितना मार्जिन मोटा मोटी रखना चाहिए? बट ये तो सारा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मुझे याद है हम लोग जो है वो एक प्रोडक्ट बना रहे थे हमारी कंपनीज में। जी। और हमने वो प्रोडक्ट बनाया, और वो हमारी कंपनीज के बहुत सारे ये 24/7 एक चेन है, शॉप की एक चेन है गॉडफ्रे फिलिप्स की। तो उसके R&D में हमने एक शरबत डेवलप किया था, और जब वो बनाया तो हमने बना के प्रेजेंटेशन हमारे जो है वो चेयरमैन साहब को बताया। मोदी साहब हमारे चेयरमैन थे, के मोदी, जिनका भी देहांत हो गया है, वो मतलब नो मोर। तो उनको जब बताया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने सवाल पूछा इसकी कॉस्टिंग कितनी है, एक ग्लास की कितनी पड़ेगी हमें। तो हमने बताया 10 रुपया, और उन्होंने फिर इमीडिएट कहा ठीक है इसको मार्केट में 100 रुपीज पे लॉन्च करना। तो हम उस वक्त ज्यादा अकल नहीं रखते थे, लेकिन हमने सोचा अरे 10 रुपए की चीज को 100 रुपए का बेचने का, जी मतलब वो कुछ अच्छा हमारे ख्वाबो ख्याल से बाहर था। बाद में समझ में आया कि यार ये तो सब चीज ऐसी होती है, वो नीड बेस पे। अब किसी के पास वैसी चीज नहीं है तो आप कमाओ, जब तक आप कमा सकते हो। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचो, तो ये तो मार्केट डिसाइड करेगी ना बाबा, वो आपकी 100 रुपए का लेगा या नहीं। अगर उसको बाजू में कोई 50 रुपए में उससे अच्छा जूस दे रहा है टेस्ट का, तो वो आपके पास नहीं आएगा, तो आपकी प्राइस खड़ी नहीं रहेगी। तो ये तो सब गेम है मार्केट का, आई मीन नो फिक्स रूल। जी, शुक्रिया। हाँ, नजीर साहब एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ नजीर साहब, आपका सवाल है क्या नजीर साहब? रफीक साहब। जी अनवर साहब, सॉरी मेरा सेकंड बार जो वो है, परवेज साहब का थोड़ा सा मुझे फोन नंबर और जो है पीपीटी जरा शेयर कर दो, मेहरबानी होगी। थोड़ा मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मैं आपसे पर्सनल बात पूछ लेता हूँ। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और कोई सवाल है तो हम, नहीं तो फिर इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे। किसी और का सवाल है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग एंड पे है। ठीक है इंशाल्लाह। सलाउद्दीन भाई, सलाउद्दीन साहब। जज़ाकल्लाह खैर। परवेज साहब का लेक्चर सही में बहुत ज़बरदस्त था, उस हिसाब से कमेंट दिया है लोगों को। एक अनाउंसमेंट ये करना था कि 22 को जो है हम लोग का जो वेबिनार है, उसकी टॉपिक ये है री इन्वेंटिंग बिजनेस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, जिसके स्पीकर अबरार अली सैयद रहेंगे, जो विजिटिंग फैकल्टी हैं IIM के और प्रोफेसर हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा ये अनाउंसमेंट करना था कि अपना जो मैंने एक सर्वे फॉर्म सर्कुलेट किया है सारे ग्रुप पे, रमज़ान में हम लोग वेबिनार करें तो उसकी क्या टाइम क्या रहेगा, तो वो एक सर्वे हमने लिया है, उसको आप ज़रूर भरें, क्योंकि आपके इनपुट्स के बेस पे ही हम जो है हमारी कोर कमेटी जो रिफर की है वो डिसीजन लेगी। ठीक है।
और आप हर प्रॉब्लम के लिए रिफा को जरूर कांटेक्ट करें, मैं बार बार कहता हूं। और आप रिफा मार्ट पे भी अपना बिजनेस को इनलिस्ट करें, फ्री लिस्टिंग करें। मेंबर्स अगर बनेंगे तो गोल्ड प्लान है, नई मेंबर बनते हैं तो फ्री लिस्टिंग कंटिन्यू करें, ठीक है। उसके बाद तमाम शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने ये इस वेबिनार को कामयाब बनाया। और उसके बाद शुक्रगुजार हूँ परवेज अंसारी साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और टाइम निकाला इसके लिए। और हमारे होस्ट जो हमेशा इतनी मेहनत करते हैं अनवर साहब, उसका शुक्रगुजार हूँ। और तमाम पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, जो लगातार मैं देख रहा हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स रिपीट कर रहे हैं। एक बीच में बात रह गई कि प्राइसिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं ये बोलता हूँ प्राइसिंग भी एक जो है ना एक टॉपिक है। अब हम लोग पूरा सीरीज चलाने आते हैं। हाँ, प्राइसिंग भी अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, वो एक पूरा वेबिनार का कि प्राइसिंग कैसे करें, ये भी एक चीज है। तो हम लोग का प्लान यही है कि एक स्टार्टअप की सीरीज हम लोग करेंगे, जिसमें डिफरेंट स्टार्टअप्स को हम ट्रेनिंग करेंगे, एक स्केल अप की ट्रेनिंग करेंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे बिजनेस स्केल अप कैसे होता है, और एक जो जनरल जो अलग अलग क्रिटिकल इश्यूज पे चल रहा है। तो ये रिफा का प्लान है। तो आप लोग रिफा से जुड़े हैं, दूसरे लोग को भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बने, और हर प्रॉब्लम के लिए ये वन रूफ है जिसके अंडर आप लोग आए। एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा काम है, ठीक है। आप लोग इस लायक बने एक दूसरे के, जो एक दूसरे के लिए काम आ सके, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग क्लोज कर रहे हैं अभी। सी यू एट द नेक्स्ट वेबिनार। अस्सलाम वालेकुम। परवेज साहब आपका भी शुक्रिया। भाई मेरा ईमेल फोन नंबर चाहिए मुझे। ये मिल जाएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। ये रिफा ये कर लेंगे आपको सलाउद्दीन भाई। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम।